बच्चों, today I am going to discuss some important basic terms used in English language. As of now, we have completed letters and we have learned vowels and consonant and its sound also. After that, the important term is word. Word is nothing but it is the group of letters. A group of letters, another one we can say characters, which gives a complete meaning. A group of letters which gives a complete meaning is called a word. For example, book. Book consists of 4 letters. It is a group of 4 letters and it has its own meaning. किताब हिंदी में कहेंगे. That group of letters is called word. I am going to tell you different way of writing the definition of word. Now हम लोगों को ये जानना है, कई तरीके से डेफिनेशन को दिखाया गया है वर्ड का, और जब मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो कैसे किसी चीज़ का, किसी भी वर्ड का, किसी भी सेंटेंस का कैसे हम लोग अंग्रेजी करें और कैसे बनाए, वो आफ्टर टेंस और वॉइस पढ़ने के बाद ही समझ पाएंगे. तो यहाँ मैं डेफिनेशन को 4 तरीके से लिखा हूँ. हियर आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ वर्ड इन 4 वेज. फर्स्ट डेफिनेशन, a group of letters is nothing but characters which gives a complete meaning is called a word. So already I have explained to you. For example, book has 4 letters and it is giving the meaning of kitab in Hindi. Similarly, a word is a group of letters which gives a complete meaning. Here it represents the voice. It's called कहलाता है present indefinite tense की voice मिलती है. A group of letters का समूह which gives present indefinite tense को बता, जो देता है complete meaning is called represent the voice of present indefinite. कहलाता है ये word. तो कहलाता है का अंग्रेजी हम लोग निकालते हैं, लेकिन कहते हैं ये भी कहा जा सकता है. जैसे indefinite में I eat a mango, उसका voice होता है mango is eaten by me. मैं आम खाता हूँ, a mango is eaten by me. मेरे द्वारा आम खाया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वर्ड इज डिफाइंड एज इज कॉल्ड, कहा जाता है. तो दिस रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सेम वे दिस सेंटेंस इज अ सिंपल वर्ड. ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच गिव्स अ कंप्लीट. दिस इज द यूजिंग टू बी वर्ब एंड हियर रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस व्हिच गिव्स. तो वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर. वर्ड जो है शब्दों का समूह है विच रिलेटिव प्रोनाउन का को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो गिव्स देता है. तो जब सब्जेक्ट और V1 थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में रहता है तो ताहत ये मीनिंग कहते हैं कंप्लीट सेंस. कंप्लीट सेंस है कंप्लीट मीनिंग. तो हियर वर्ब टू बी एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, फॉर मेकिंग अ definition of the word. Similarly, a group of sound I have already explained in previous classes. Vowel and consonant. The vowel and consonant sound nothing but represents a letter which makes a complete sense. Sense meaning दोनों का अर्थ जो हिंदी होता है, अर्थ होता है, is called word. But it is in last one you have to understood the word division. It is very important. Any sound uttered by the mouth, कोई भी आवाज हमारे मुख से जो निकलती जाती है, ऑटॉट वॉइस में ऑटॉट निकाली जाती है बाय द माउथ, विच है जो मीनिंग, जिसका अपना खुद का एक मीनिंग होता है, वर्ड कहलाता है. तो आई थिंक सो वर्ड डेफिनेशन विच इज डिस्प्लेड ऑन द व्हाइट बोर्ड, इट इज क्लियर टू यू ऑल एंड आई हैव गिवन द प्रोसेस एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, voice of present indefinite tense also,
and for to be used you will learn in subsequent classes also, and then only you have idea how to make the sentences into English. Thank you. There are some examples of word. Here we see that a book has 4 letters. It is a group of 4 letters. Pencil is a group of 5 letters. And same matter is the group of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6 letters. After counting, we have got it is a group of 6 letters, and all have their own meaning. That's why words provides the meaning, full meaning. Now we have to read parts of a speech. Parts of a speech. Before reading part of a speech, you have to know first of all about a speech. The Hindi meaning of parts of a speech, here it is, you can write shabd bhed. Parts of it, shabd bhed. We know that the meaning of word is shabd, but here a speech is written. So first of all, we should know how a speech is converted into word, and it is converted into the language on the basis for providing and for knowing the speech. I am going to give the path track, then we will understand what is the speech. Now सबसे पहले हम स्पीच का हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं. स्पीच का मीनिंग होता है बोली, भाषण, बोलचाल के शब्द बोल. लेकिन इसको समझने के लिए हमें 2 बात समझने की जरूरत पड़ेगी. पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने के पहले स्पीच समझना बहुत जरूरी है. You must नो द स्पीच, and I am going to explain a speech on the basis of 2 paths. One path is definition path, another one is usage path, that is called communication path. So here we will learn one by one. First, definition path as displayed on whiteboard. Here first word is word. First term is word here, and we have read word is a group of letters which gives complete meaning. Word जो है लेटर का ग्रुप है जो कंप्लीट मीनिंग, ये डेफिनेशन है इसका परिभाषा इस तरह दिया जाता है. सेम वे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स डिफाइंस द सेंटेंस. A sentence is a group of words which gives complete meaning. ये ग्रुप ऑफ वर्ड शब्दों का समूह है जो वाक्य कहलाता है, पूरा अर्थ देता है. जैसे एज फॉर एग्जाम्पल राम इज गोइंग टू पटना, हमें कई शब्द मिले हुए हैं और ये राम पटना जा रहा है, इसका हिंदी बता रहा है. द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which gives complete sense. A complete sense or complete meaning both are same. Similarly, after combination of sentences, we form paragraph. And some paragraph provides a page, and in page you will learn chapter. So chapter is bigger unit, and a smaller unit of chapter is word in definition part. But you have to think, हमें सोचना है कि word का व्हाट आर द यूजेज ऑफ वर्ड, वर्ड के यूज क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेशन हम लोग समझ गए, लेकिन वर्ड का यूज समझते हैं. यहाँ वर्ड का यूज समझते हैं. हम समाज में रहते हैं तो वर्ड जो है अपनी फीलिंग, अपनी बोली, अपनी आवाज़, अपने थॉट को एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुँचाने का काम करता है. ये हमारे प्रैक्टिकल यूज में है. जो वर्ड क्यों बना, क्योंकि हम अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाते हैं. तो वर्ड, एक बात हमारी चली गई तो किस भाषा में बोलते हैं, लैंग्वेज जिसको कहते हैं, वो वर्ड लैंग्वेज को भी प्रोवाइड करता है. वर्ड इज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ लैंग्वेज. लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स. लैंग्वेज कई वर्ड को कंसिस्ट करता है. लैंग्वेज की परिभाषा हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ हम उसे क्लियर कट डेफिनेशन, आई विल गिव यू क्लियर कट डेफिनेशन व्हाट इज लैंग्वेज हियर ऑल्सो. तो यूजेज ऑफ दिस इज द पाथ ऑफ डेफिनेशन. दिस पाथ प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन पाथ. हम कम्युनिकेशन कैसे, हाउ टू कम्युनिकेट, हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं. एक सिंगल वर्ड यदि ठीक ढंग से प्रॉपर एक्शन, प्रॉपर जेस्चर के साथ बोला जाए, हाव भाव के साथ बोला जाए, तो ये लैंग्वेज साबित होगा और लैंग्वेज की तरह ये मैसेज कन्वे करेगा. और अगला जो आदमी है, ह्यूमन बीइंग है, पीपल है, वो समझ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं. मान लेते हैं कि हमारे घर के पास कोई चोर आ गया और मुझे डर के मारे उससे बोली नहीं, खाली थी
और सरप्राइज होते हैं। थीप कहकर एक सरप्राइज या शाउट करते हैं थीप थीप, ओनली सिंगल वर्ड कन्वेज द मैसेज टू द अनदर पीपल। ऐसे थीप शाउट करके चिल्लाने से ये मैसेज दे देता है कि हमारे घर में डरा हुआ हूँ, और ये अगला बंदा समझता है वो लाठी डंडा लेकर आएंगे, चोटों मारकर भगा देते हैं। तो थीप भी एक लैंग्वेज हो गया टू कन्वे द मैसेज, टू कम्युनिकेट आवर फीलिंग टू द पीपल। The word also defines the language. It is the basic building block of language. It is a raw material of language, I can say. Similarly, sentence provides the expression also, such as it asks questions, it gives the statement, it also go there. तो ये हमें समझाता है कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, जो सेंटेंस आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें सेंटेंस से भी पता चल जाता है कि हम कैसे अपने भाव को, अपने विचारों को अपने से दूसरे तक पहुंचाते हैं। सेम उसके बाद आता है स्पीच। तो व्हाट इज स्पीच? स्पीच इज ग्रेटर देन सेंटेंस। हियर आई हैव रिटन स्पीच इज ग्रेटर देन सेंटेंस। स्पीच, फर्स्ट ऑफ स्पीच भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। और स्पीच कैसे तैयार होता है, कैसे ये प्रोड्यूस्ड, हाउ स्पीच इज प्रोड्यूस्ड? स्पीच इज प्रोड्यूस्ड our vocal organ से यूज किया था। स्पीच इज नथिंग बट इट इज ए स्पोकन वर्ड। ए स्पोकन वर्ड, ए पीस ऑफ लैंग्वेज। इट इज ए पीस ऑफ स्पोकन पीस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का टुकड़ा है, और ये जो है स्पोकन वर्ड, बोलने का वर्ड है। जब हम साउंड और वर्ड को बोलते हैं और किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, स्पीच होता है, भाषण होता है। यही स्पीच हमें जानना है। तो स्पीच जो है सेंटेंस के बाद इसका स्पीच आता है, और इसकी हमारी जो प्रोटेक्शन होता है हमारे लंग्स से होता है। हमारे शरीर में लंग्स में हवा भरती है, जो लंग्स है फेफड़ा, जो हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो हमारे हवा जाती है। और लारिंग्स जो है, गला है, जो हमें वॉइस बॉक्स कहते हैं, वो पाथ प्रोवाइड करता है हमारे लंग्स में, एयर पैसेज प्रोवाइड करता है और हवा जाती है। हवा जो हमारे लंग्स से होकर गुजरती है, लारिंग्स से होकर गुजरती है, लारिंग्स से, तो लारिंग्स वॉइस बॉक्स कहा जाता है इसको। और उसमें इट हाउसेस द वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड इसमें हम जानते हैं कि वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन। एनीथिंग वाइब्रेट, जब कोई वस्तु कांपती है तो टन टन की आवाज निकलता है। सेम वे लारिंग्स हैज गॉट ए वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है, और वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। और साउंड को ये साउंड ही वॉइस में के शेप्ड हो जाता है, और उसी में वोकल ट्रैक होता है। वोकल ट्रैक जो पहले मैं भाषा में बताता हूँ, हमारा वोकल ट्रैक में एक ट्यूब होता है, जो हमारे ट्यूब जो है कनेक्ट होता है थ्रोट टू हेड तक। उसमें हमारे कनेक्शन में लिप्स आते हैं, वोकल ट्रैक में टंग आते हैं, टीथ आते हैं, नोज आते हैं। इस ट्रैक में तो हमारे लिप्स, टंग, टीथ के उपयोग से बाय द यूज ऑफ लिप टंग और वॉइस इज जनरेटेड। एंड वोकल ट्रैक शेप द वॉइस, मॉडिफाइड द वॉइसेज। वोकल ट्रैक जो है, जो पाथ है, ये मॉडिफाइड द वॉइसेज। वॉइसेज का मॉडिफिकेशन है स्पीच इज प्रोड्यूस्ड। द लाइक दैट स्पीच इज प्रोड्यूस्ड। इन पिछले क्लासेस में देखे हैं, जब पी वर्ड जो है, पी लिप्स को, दोनों लिप्स बंद होने से हमारे पी की आवाज होती है, कॉन्सोनेंट साउंड में पढ़ चुके हैं। तो ये स्पीच कैसे स्पीच प्रोड्यूस हुआ? स्पीच जो है हमारा जो है प्रोडक्शन होता है। तो एबिलिटी टू स्पीक, तो कैसे हुआ पूरा प्रोसेस बता दिया। ये डिटेल में साइंस में पढ़ेंगे, लेकिन हमें जानना है कि स्पीच जो है इज प्रोड्यूस्ड with the help of our vocal organs. Vocal organ is the larynx. Larynx houses the vocal cord, and vibration of vocal cord, voice is produced, and after voice, vocal tract shapes modifies the voice, and we will get the speech. And similarly, after that, language is the way of communicating our speech, our voice. Language, it is the कम्युनिकेटिंग मीडियम, वाइड स्प्रेड कम्युनिकेटिंग मीडियम। जैसे इंग्लिश भाषा, इंग्लिश में बोल रहे हैं, जैसे बोल दिया इंग्लिश में कोई शब्द गो, तो ये हमें बता रहा है जो इंग्लिश में हम इंग्लिश भाषा में बोल रहे हैं, ये लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज, प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज इन दिस प्रोसेस, आफ्टर दैट लैंग्वेज इज प्रोड्यूस्ड, बट लैंग्वेज प्रोवाइड्स द साइन एंड जेस्चर ऑल्सो। इशारा करके भी हम हाथ को, अपने हाथ, मुंह और किसी भाव को हिलाकर हम लैंग्वेज बता सकते हैं। रिटेन वर्ड भी हो सकता है, रिटेन में भी लिखकर लैंग्वेज में बातें कर सकते हैं। यदि कुत्ता मेरे घर पर आ रहा है, चाहे सांप बच्चा है, तो हम इस तरह कुंडली मार कर हाथ ऐसे कर देंगे, तो अलग बिना बोले ही दूसरा बंदा, दूसरा आदमी समझ जाएगा कि
तो वहाँ जरूर सांप है। तो ये लैंग्वेज जेस्चर पर भी निर्भर करता है। और इसके बाद स्पीच के बाद लैंग्वेज का है कि स्पीच को, हमारी वॉइस को, हमारी एक्सप्रेशन को कैसे, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। लैंग्वेज इज अ मीडियम, वाइड स्प्रेड मीडियम ऑफ कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। तो पर्टिकुलर एरिया लैंग्वेज is the system of sounds, the system of the sound and speech to convey our message to the another people. As of now, we have understood that word, sentence, speech represents language. Words represent language, sentence represents language, speech represents language. Language is wide spread communicating medium. एक कम्युनिकेटिंग मीडियम है। ऑल आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमारी बात को एक दूसरे तक भेज देना कैसे, ये सभी काम करते हैं। वर्ड सेंटेंस का यही हमारे समाज में उपयोग है। तो हम कैसे अपनी भाषा, लैंग्वेज क्या है कि हमारी ये है जो वे ऑफ स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, जो किस स्टाइल से हम किस लैंग्वेज में बोलते हैं, जो भोजपुरी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेज इज द हायर यूनिट of the expressing the thought. So here communication track again we will understand what, how it expresses language. Word जैसे कि go, एक word लेते हैं go, English word go कहना, go is a word and go represents sentence also, imperative sentence we learn। go means जाओ, एक ऑर्डर दे दिया, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस स्पीच इज नथिंग बट ए वर्ड विच इज यूज्ड इन ए सेंटेंस। ए वर्ड विच इज यूज्ड इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड स्पीच। जो भी वर्ड है सेंटेंस, दिस इज द स्पोकन वर्ड। स्पीच का प्रोडक्शन मैंने बता दिया है, ये एबिलिटी टू स्पीक। स्पीच इज नथिंग बट एबिलिटी टू स्पीक, इट रिप्रेजेंट एबिलिटी टू स्पीक, बोलने की क्षमता को दर्शाता है। क्योंकि हमारे ये वोकल ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है, उसमें लंग्स से सहायता के हेल्प से, और हमारे जो है वोकल ट्रैक्ट जितने भी आई, नोज, लिप्स के हेल्प से स्पीच प्रोड्यूस होता है। तो हम कैसे बोलते हैं, साउंड कैसे क्रिएट करते हैं, हमारे माउथ से स्पीच निकलता है। आफ्टर वॉइस प्रोडक्शन के बाद ये स्पीच निकलता है। स्पीच में वॉइस में क्या होता है, टोन होता है, पिच होता है और अपना वॉल्यूम होता है। टोन क्या है, टोन है क्वालिटी ऑफ स्पीच, जिस क्वालिटी से हम भेजते हैं, अपना बोलते हैं, हायर टोन, लोअर टोन, जिस क्वालिटी से बोलते हैं तो इंप्रेशन छोड़ता है। हमारी इंप्रेशन, मैं जो बोलता हूँ मेरी क्वालिटी कैसे है, वो इंप्रेशन जोड़ता है, तो टोन हो गया। और अपने अपने एरिया से टोन हो गया। पिच जो हो गया है, हाईनेस और लोनेस दिखाता है आवाज को, वॉइस की हाईनेस और लोनेस। और जो है वॉल्यूम होता है, तो ये लाउडनेस एंड उसका जो है, जो लाउड कितना जोर से होता है, लाउडनेस और सॉफ्टनेस को दर्शाता है, कितना वो सॉफ्टनेस मधुर आवाज में बोलते हैं, वॉल्यूम होता है। स्पीच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, वॉइस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टोन, पिच एंड वॉल्यूम। Voice is generated, shaped by vocal cord, and speech is modified by the vocal tract. So speech is nothing but it is the combination of sentence, word and sound. A word which is used in sentence determines the speech. A speech is a spoken word. A speech is a spoken language. Also we can say a speech is the piece of language. तो लैंग्वेज से छोटा पीस ऑफ लैंग्वेज यू कैन से, द पीस ऑफ लैंग्वेज इज ए स्पीच, एंड लैंग्वेज इज द बिगर यूनिट एंड gives the gesture also, sign also. Language, this is a Bengali language, so language is written and word and also communicating word also. How it comes? So I will write the definition of a speech and language, then it will be clear to us. Now let us understand definition of speech one by one for clarity. First one, the communication or expression of thoughts in spoken words is called speech. I have told you speech is a spoken word. The communication, हमारी बात को और expression, हमारे हाव भाव को और विचार को पहुंचाने की प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन पहुंचाने की प्रक्रिया स्पीच। स्पीच क्या है कि हमारी बातों को एक से दूसरी जगह पहुंचाना स्पीच के कहते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स इन स्पोकन वर्ड्स, बोल कर हम पहुंचाते हैं, अपने बोली से बोल सुनाते हैं। अनदर स्पीच इज नथिंग बट ए स्पोकन वर्ड। स्पीच कुछ नहीं है कि बोली अपने बोलने वाली शब्द है। सिंपली वी कैन से दैट स्पीच इज स्पोकन लैंग्वेज। ये स्पोकन लैंग्वेज बोलने वाली भाषा है, यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स, मीनिंग एंड
आइडियाज टू द पीपल, जो मैसेज देता है पीपल को, मैसेज देने के लिए यूज किया जाता है। तो ये है स्पोकन वर्ड। स्पोकन लैंग्वेज मीन्स इट इज ए पार्ट ऑफ लैंग्वेज, पीस ऑफ लैंग्वेज। सिमिलरली थर्ड वन, ए वर्ड विच इज यूज इन स्पीकिंग टू कन्वे कम्युनिकेट आवर थॉट मीनिंग एंड आइडियाज कॉल्ड स्पीच। तो ऑल थ्री सेंटेंस represent the communication, communicate. In last, speech denote the word. Explain another definition, which is the last but not least. This definition has got its own importance. Here, I conclude and clarify the meaning of speech. The word used in sentence is called speech. This is the simple definition. The word which is used in sentence is called speech. Now we will learn. Now I am going to explain a clear cut definition of language. Definition: a language is a system of sounds and written symbol used by the people. Language जो है sound का प्रणाली है और एक सिंबल भी है जो लोगों के द्वारा यूज किया जाता है, इशारा के द्वारा, जेस्चर अपने द्वारा यूज किया जाता है ऑफ ए पार्टिकुलर कंट्री एरिया और ट्राइब टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। कम्युनिकेशन के लिए जो है एक कंट्री में अपनी एक लैंग्वेज बोली जाती है, एक ट्राइब जनजाति लोग जो आदिवासी लोग हैं आउट ऑफ स्टेट जो रहते हैं उनके लिए अपनी लैंग्वेज होती है। तो ये जहाँ पीपल रहते हैं, पीपल वांट टू कन्वे देयर मैसेज टू वन अनदर, दे यूज द system of sounds and symbol to convey their thoughts. This defines language. So this definition is so easy and understandable. The language is system of sounds and written symbols used by the people of particular country, area or tribe to communicate each other. अपने आपस में, for example the हिंदी लैंग्वेज, हिंदी में बोलते हैं the English language, etc. अब हम स्पीच और लैंग्वेज में एक अंतर को बताने जा रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन स्पीच एंड लैंग्वेज। स्पीच इज हाउ वी प्रोड्यूस वर्ड्स एंड साउंड। जिस तरह हम अपने वर्ड्स और साउंड को प्रोड्यूस करते हैं वो स्पीच बताता है, वो प्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स एंड साउंड को बताता है। बट लैंग्वेज रेफर्स टू हाउ वी यूज दीज वर्ड्स। इन वर्डों को हम कैसे यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट आवर वांट्स एंड, हमारी चाहत और आवश्यकता को कैसे लोगों तक पहुँचाएँ, वो लैंग्वेज बताता है। कैसे हम कम्युनिकेशन करें, ये लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट करें, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाएं, लैंग्वेज बताता है। द लैंग्वेज रेफर टू हाउ यूज दीज वर्ड्स, दैट वर्ड विच इज प्रोड्यूस्ड इन स्पीच। उस वर्ड को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, ये लैंग्वेज द्वारा पहुंचाया जाता है। हमारी भाषा को बोलकर लिखकर हम लैंग्वेज में दूसरों को पहुंचाएं। रिटन लैंग्वेज ऑल्सो कन्वे द मैसेज टू द पीपल। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम लोग समझ गए हैं कि स्पीच शब्द कैसे है। शब्द स्पीच तो डेफिनेशन से हमें पता चल गया कि एबिलिटी टू स्पीक, इट डिफाइंस एबिलिटी टू स्पीक। और स्पीच जो है यूटिलाइजेज ऑफ आवर वोकल ऑर्गन। तो स्पीच को डिवाइड नहीं करते हैं, एक्चुअली पार्ट्स वर्ड का होता है। हम जानते हैं, वी नो दैट कि वर्ड इज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज एंड वर्ड इज ए रॉ मटेरियल ऑफ लैंग्वेज। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, वी कैन से। ये लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट वर्ड, एक वर्ड ही हमारी पूरी भाषा को परिभाषित कर देता है। पूरा लैंग्वेज इस पर निर्भर है, जैसे कि हम एग्जाम्पल में पीछे पढ़ चुके हैं अभी जस्ट। तो स्पीच भी एक वर्ड ही है, बट स्पोकन वर्ड है। स्पोकन वर्ड है। हम सेंटेंस को देखते हैं, सेंटेंस इज यूज फॉर एक्सप्रेशन, कन्वेइंग आवर मैसेज टू द पीपल, ऐसा पढ़ चुके हैं अभी। तो सेंटेंस भी यूजेज में हमें कम्युनिकेशन। सेंटेंस किससे बना होता है? वर्ड से। जैसे क्या होता है, you have to say something, we utilize the word, group of words, utilization of group of word makes sentence। तो सेंटेंस भी है ग्रुप ऑफ, सेंटेंस में आता है स्पीच, सेंटेंस में आता है वर्ड। तो वर्ड जो है अपना बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। स्पीच दो एबिलिटी टू स्पीक है, तो स्पीच कैन नॉट बी डिवाइडेड। हियर स्पीच इज नथिंग बट वर्ड, सिंपल एंड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ language is speech. So speech can be divided. Sorry, word can be divided. Speech and word is similar thing. Both are similar thing. So here, parts of speech
हिंदी में स्पीच को शब्द मानेंगे, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज की छोटी इकाई है। वो यहाँ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड्स को बांटते हैं, वर्ड्स का काइंड्स बताते हो। डेफिनेशन, वर्ड्स आर डिवाइडेड, वर्ड को बांटा जाता है into words are divided into 8 classes. So बार बार बोलना बोल देता हूँ। Words are divided into 8 classes according to their use. Words are divided into 8 classes according to their use. They are called parts of speech. Words are divided into 8 classes according to their use. They are called parts of speech. They are 8 in number. They are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, one, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. तो what is part of a speech? शब्द जो है वर्ड्स हैं, स्पीच इज अ वर्ड। तो वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस। देखते हैं कि 8 भागों में बांटा गया वर्ड को, इन्हीं को स्पीच कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। स्पीच के पार्ट हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ कि अभी जो मैं आप लोगों को बताया अभी तक, जो है ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं जो ट्रांसलेशन में काम आए। बच्चे जो है समझ रहे होंगे कि वी आर गेटिंग लेट ट्रांसलेशन सीखने में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सब जो की वर्ड्स हैं जो जरूरी हैं सेंटेंस से बनाने के लिए, ग्रामेटिकल वर्ड्स को जानना बहुत जरूरी है, जो हमें स्ट्रक्चर पैटर्न में मदद करेगा। तो घबराए नहीं, समय आ रहा है मेरा तो बेसिक चैप्टर ट्रांसलेशन सिखाना है, हिंदी टू इंग्लिश सिखाना है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं एक ब्रीफ में मैं आगे लेकर चल रहा हूँ, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी शब्द की, वर्ड की, वहीं पर मैं उसको डेफिनेशन समझाऊंगा और ट्रांसलेशन बनाने के सेंटेंस में यूज करूँगा। अभी इनिशियली जो ज़रूरत है वो चीज़ें बनाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। और ऐसा करने से आप जब ट्रांसलेशन में जाएंगे तो विश्वास करें कि आप बहुत ही ईजी महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि ट्रांसलेशन ईजी हो गया है। हो सके मैं बार बार बोलने में, मैं फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ तो बार बार मैंने बोलने में कहीं थोड़ा बहुत कटोन हो रहा होगा, लेकिन आप जो जल्दीबाजी ना करें, आप रोज़ वीडियो देखते रहें और ऐसा आपको समझ में आएगा कि हाँ ये जो है ट्रांसलेशन, और आप इंग्लिश के जो भी बुक हैं आसानी से समझ जाएंगे। जब मैं हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी सेंटेंस में बनाऊंगा, अंग्रेजी सेंटेंस को हिंदी सेंटेंस बनाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे ये फर्स्ट स्टेप है लेटर का सीढ़ी का, और धीरे धीरे आप पहुंचेंगे। तो ग्रामेटिकल वर्ड के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू मोर, दैट्स ऑल।